Good morning, student. How are you all? I hope you are doing well. Today we are going to learn forfeiture of shares. What's that? Forfeiture of shares. Did you heard about the word before? Before entering into the topic, I am going to tell a story. ठीक है, मैं आज स्टोरी सुनाने वाला हूँ, छोटा सा स्टोरी to understand forfeiture of shares. Right? Okay. In a small town called somewhere in city, in a small town, Ramlal lived with his family. Ramlal's neighbor Sohan purchased a car for rupees 10 lakh. Now, Ramlal's prestige problem? No. So his wife insisted to purchase same type of car. But his economic conditions does not allow to purchase in lump sum or in installment. So he planned to manage anyhow. He planned to purchase through installment from the company. The company offered the car and asked Ramlal to pay a 20 installment. Okay, he purchased the car and paid the first installment and ride the car very proudly. Means company sold the car for rupees 10 lakh and company asked to pay that amount in 20 installment. Right? Now he paid the first installment, second installment and third installment. But unfortunately, he could not able to pay the fourth and fifth installment because of some personal problem or because of his business depressions. We don't know actually. So he could not able to pay fourth and fifth installment. So what company did? The car company did. The company just sent a notice that you have to pay that money within a particular period, even though Ramlal could not able to manage to pay the amount. Right? So what will happen? Company asks money, but the Ramlal could not able to pay money. So automatically the car is taken by company. The company take away the car. Okay, this is a big problem, no? Ramlal could not able to pay the fourth and fifth installment, so company take away the car. Okay, so Ramlal now demand for the paid amount. He paid first installment, second installment, third installment. No, he asked for the paid installment. That is, he paid by him. No, so but company refused to pay that amount. But company said we will not pay because the money is forfeited. The company refused to pay by stated that the money paid is forfeited. पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो पैसा आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए थे, मान लीजिए 50,000 और 50,000 1,50,000 जो बांधा था रामलाल, so that amount will not get back by Ramlal because money is forfeited by the company. The company will not repay that amount. That money is forfeited. पैसा क्या हो गया? फॉरफीट हो चुका है. समझ गए? अभी एक कार को हम लोग शेयर मान लेंगे. दिस इज शेयर. राइट? हम लोग शेयर लिए थे, बहुत इनमें से शेयर ले लिए हम लोग. सो कंपनी आस्क्ड टू पे इंस्टॉलमेंट. एप्लीकेशन बांध दिए, अलॉटमेंट बांध दिए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं बांधे. तो क्या होगा? कंपनी जो शेयर हम जो लिए थे वो शेयर्स को क्या कर देगा? कंपनी फॉरफीट कर देगा आफ्टर 14 डेज ऑफ नोटिस. नोटिस देंगी. नोटिस का बावजूद भी हम लोग नहीं पेमेंट नहीं कर पाए तो कंपनी विल फॉरफीट द शेयर्स. सो व्हाट अबाउट द अमाउंट पेड बाय अस? वी पेड एप्लीकेशन, नो. वी पेड अलॉटमेंट, नो. So that money will not be get back. That money belongs to company. So this is a capital profit for the company. This is the capital profit for the company. Okay. So what will happen? So now the company owned the car. Now after some time, after repairing and everything, the company resale to somebody. कंपनी क्या कर दिया? जो फॉरफिट किया था शेयर्स को
रामलाल का शेयर कार को, वो कार को दूसरा किसी को, मोहन या सोहन को दूसरा किसी को बिक्री कर देगा, दैट इज रीसेल। सो जस्ट लाइक शेयर में भी ऐसे ही होता है, शेयर जो फॉरफिट करते हैं वो शेयर्स को दोबारा हम लोग री इश्यू भी करते हैं, दूसरा किसी को दे देते हैं। री इश्यू, फॉरफिट करने के बाद री इश्यू करते हैं, दोबारा किसी को री इश्यू कर देते हैं। वो री इश्यू पार में कर सकते हैं, प्रीमियम में कर सकते हैं और डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। व्हाट इज पार? 10 रुपीज कार को 10 लाख कार को 10 लाख में बिक्री करने से पार है। कार का दाम कितना था? 10 लाख। 10 लाख कार को 10 लाख में बिक्री कर दी, तो इट इज पार। 10 लाख का कार है, 10 लाख का कार है और 12 लाख में बिक्री कर रहे हैं, सो प्रीमियम। 10 लाख का कार है, 9 लाख में बिक्री कर रहे हैं, डिस्काउंट। So it is up to the company's director whether the shares may be reissued at par, premium or discount. Just like रामलाल का एग्जाम्पल था, हमारे भी क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स रहेंगे, उन लोग कुछ पेमेंट कर देते हैं और कुछ पेमेंट कर नहीं पाते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। सो आफ्टर रिपीटेड नोटिस, इन स्पाइट ऑफ द नोटिस, when a particular shareholder could not able to pay, the company forced to forfeit their amount. सो उनका शेयर्स को क्या कर देते हैं हम लोग? फॉरफिट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? फॉरफिट मतलब क्या है? सिंपली कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज मीन बाय फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, हाउ टू पास एंट्री फॉर दैट। ओके, सो व्हाट इज फॉरफिचर ऑफ शेयर्स? I think you hope now you can answer the question. What is forfeiture of share? Yeah, if any shareholder fail to pay the amount due on allotment or any call within the specified period, the director may cancel his shares. This is called forfeiture of shares. Once again, I repeat it. If any shareholder fail to pay the amount due on allotment or any call within the specified period, then the director may cancel his shares after giving 14 days notice. So this is called forfeiture of share. Got it? Now actually the company can forfeit as per the article of association which allows them to forfeit. The usual procedure is that defaulting shareholder must be given minimum 14 days of notice, requiring him to pay the unpaid amount on his shares together with interest. Here the company asks the defaulter or the unpaid amount, the shareholders, to pay that due amount with interest. इंटरेस्ट कॉल्स इन अरियर्स के इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं। कितना कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट कितना होगा? कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट कितना होगा? 10% they have to pay. So they have to pay that amount together with interest. Okay, so this is forfeiture, right? forfeiture मतलब शेयर्स इश्यू करना, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे और शेयर को वापस लेंगे। कैंसिल करना, शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। कैसा डेबिट करना पड़ेगा? मैं एंट्री बताऊंगा आपको। When we issue shares, the entry is bank account debit to share application, then share application account debit to share capital. So यार to share capital लिखते हैं जब when we issue shares to share capital. Okay, we credit. When we cancel shares, जब हम लोग कैंसिल करते हैं शेयर्स को या फॉरफिट करते हैं, तब शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। याद रखिए, जब पैसा क्रेडिट होता है शेयर कैपिटल, जब लायबिलिटी बढ़ता है, कैपिटल से लायबिलिटी नो, जब लायबिलिटी बढ़ता है, सो वी हैव टू क्रेडिट द कैपिटल। व्हेन वी गिव बैक द कैपिटल टू द particular shareholder, then we have to debit the share capital account. So in case of forfeiture, we have to debit the share capital account. Got it? Now we just move to the next one. Suppose the company issues shares in two occasions. No, this is a table. I just made a table now. This is issue. Okay, issue at par, issue at premium, discount.
नाउ डिस्काउंट इज नॉट अवेलेबल। पहले डिस्काउंट का प्रॉब्लम था, अभी डिस्काउंट जो 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ तब से डिस्काउंट शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। वी कांट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। ओके, so we have two options, either we can issue shares at par or premium। ओके, जब पार में हम लोग इशू किए, जब पार में इशू किए और फॉरफिट करते हैं उसका अलग एंट्री होगा। When we issue at premium, then the amount is not paid by that particular shareholder, then there is a separate entry. So we have to make two separate entry in case of shares originally issued at par and shares originally issued at premium। दो अलग अलग केस में करने वाले हैं। Entries of shares which were issued at par, जब par में इशू करते हैं तब फॉरफिचर एंट्री क्या होगा, जब प्रीमियम में इशू करते हैं शेयर्स और प्रीमियम को पेमेंट नहीं कर पाया शेयर होल्डर तब इसका क्या एंट्री होगा, वो दोनों एंट्री आज हम लोग सीखने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, वाज दैट व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। पार मींस क्या है, वी आर इशूइंग शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ द particular share। What is face value? Nominal value of the share। Right, for example, there's a shareholder called X shareholder है, X को शेयर इशू किए, 1000 शेयर इशू किए, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। What is the face value? Rupees 10। Okay, then the 10 rupees will be payable and application में 3, allotment 4 and first and final call 3। This is the way of getting application face value। After that, it is noticed that X could not able to pay how much? Allotment and first and final call। ये कहानी। सो इस करके हम लोग क्या एंट्री पास करना है, फॉरफीचर एंट्री पास करना है। ठीक है, क्या है, एक्स को 1000 शेयर इशू किया कंपनी, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपीज, एप्लीकेशन 3 रुपीज है, अलॉटमेंट 4 रुपीज है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज है। सो कंपनी फुल कॉल किया, एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट कॉल किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी फुल्ली कॉल अप कर दिया। लेकिन एक्स जो है अलॉटमेंट बांध नहीं पाया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बांध नहीं पाया। सो कंपनी जो डायरेक्टर जो है नोटिस वगैरह भेजे हैं एक्स को, बावजूद एक्स पेमेंट नहीं कर पाया। सो लास्टली द कंपनी फॉरफीट द शेयर्स ऑफ एक्स। राइट, ओके, नाउ वी हैव टू पास एंट्री फॉर दैट। बहुत सिंपल है, आराम से आप कर पाएंगे। दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। राइट, फर्स्ट एंट्री क्या बोला मैं, when we forfeit the share capital should be debit। जब इशू करते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। when we cancel the shares then we have to debit the share capital account। so the entry is share capital account debit, share capital account debit। suppose here X didn't pay allotment first call, no, so you have to write here to share allotment account to share first and final call account। राइट, लास्ट में यहां लिखना है यहां पर to share forfeiture। ठीक है, दिस इज द एंट्री व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट पार। जब शेयर्स ओरिजिनली इशू, इसमें देखिए प्रीमियम है, इसमें प्रीमियम नहीं है, फुल पार 10 रुपीज के शेयर्स को 10 रुपीज में इशू कर रहे हैं, तो इट इज पार। When shares originally issued at par, in this case, some shareholders could not able to pay that amount, and we forfeit that particular shareholder. Then we have to pass this entry. So the entry is share capital account debit to share allotment account to share first and final call account to share forfeiture account। इसका मतलब क्या है, मिस्टर एक्स से इतना पैसा मिलना है, ये पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला
और कितना मिला होगा, ये दोनों को माइनस कर देने से कितना वो पेमेंट किया वो मिल जाएगा. लाइक here what is the how many shares owned by X? 1000 shares. So here 1000 into called up money 343 10 rupees. So 1000 into 10 10,000. कैसा आया? 1000 is the holding shares and 10,000 is the face value of the share. So 1000 into 10 10,000 fully called up है, right? Next allotment में कितना वो दे नहीं पाया, 1000 into allotment, how much? 1000 into 4, how much? 4,000 he could not able to pay, right? So how much first call due? 1000 into first call money, how much? 3,000. ओके, अलॉटमेंट नहीं बांधा, फर्स्ट कॉल नहीं बांधा, क्या बांधा होगा? एप्लीकेशन बांधा. एप्लीकेशन में कितना बांधा? 1000 into 3,000 यहां पर आएगा. डाउट होने से क्या करेंगे आप, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, बैलेंस फिगर मिल जाएगा. 10,000 माइनस 7,000 3,000. जो अमाउंट बांधा है वो फॉरफीचर में वो में चला जाएगा. तो फॉरफीचर इज द बेनिफिट है कि लॉस है कंपनी के लिए. कंपनी के लिए बेनिफिट है कि लॉस है? कंपनी के लिए बेनिफिट है ना, क्योंकि जो एक्स पेमेंट कर चुका था उसको वापस करने की जरूरत नहीं है. दिस इज कंपनीज मनी नाउ दिस इज द कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी नीड नॉट टू पे दैट अमाउंट. दिस इज द लॉस फॉर शेयर होल्डर बट इट इज अ प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी. गॉट इट? सो यहां क्या लिखेंगे? बीइंग how many shares are forfeited? 1000 shares were forfeited for non-payment of क्या allotment money and first call money. कितना इजी देखिए, बस इतना याद रखना आपको. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बाकी अनपेड कॉल जो पेमेंट नहीं कर पाया वो क्रेडिट होगा, और लास्टली थर्ड फॉरफीचर को जो है क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ इनकम फॉर द बिजनेस, राइट, कंपनी. अभी मान लीजिए आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब कॉल्स इन एरियर्स को मेंशन किए या रिकॉर्ड किए, तब यहां पर इंस्टेड ऑफ अलॉटमेंट वी हैव टू राइट calls in arrear. When calls in arrear account is maintained, then you have to mention calls in arrear year. If you didn't mention calls in arrear account, then you can write to share allotment account, to share first and final call account directly. ठीक है? Okay. So I hope you understand the entry when the shares were issued originally at par. par में issue करते तो entry ऐसा होगा. समझ गए? सपोज एक एग्जाम्पल को मैं प्रीमियम में कराऊंगा. किसमें कराऊंगा? प्रीमियम में कराऊंगा. सो मान लीजिए सेम एग्जाम्पल ले लूंगा मैं. मिस्टर एक्स 1000 शेयर्स होल्ड किया हुआ है. कंपनी के शेयर्स कितना है? 10 रुपीज है. कंपनी 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, दैट इज 2 रुपीज प्रीमियम. हाउ मेनी रुपीज कंपनी चार्ज? कंपनी चार्ज 2 रुपीज एक्स्ट्रा, दैट इज मोर देन द फेस वैल्यू, दैट 2 रुपीज इज द प्रीमियम. So company plan to collect amount through allotment. So X has to pay 3 on application. Application में 3 रुपीज बनना पड़ेगा. फिर 6 on allotment. allotment में कितना देना पड़ेगा? 6 देना पड़ेगा. और फर्स्ट कॉल में 3 देना पड़ेगा, राइट? फर्स्ट कॉल 6 रुपीज का अंदर क्या है? 2 प्रीमियम है, ओरिजिनल 4 है. 2 + 4 6. बनना था, नहीं बना. ठीक है? सो दिस इज द केस. तब हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? जब when shares were originally issued at premium and some shareholders could not able to pay that amount, then how to pass for future entry? No? So right. So how to pass for future entry? Here the same entry will be followed, but one entry will be added with the share capital.
कैसा? Yeah, same. We have to debit share capital, share capital account. शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और चेक करिए एक्स प्रीमियम बांधा कि नहीं बांधा? एक्स अलॉटमेंट नहीं बांधा, सो अलॉटमेंट किसके अंदर है, प्रीमियम किसके अंदर है, अलॉटमेंट के अंदर है, वो अमाउंट नहीं बांधा। व्हेन अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर कुड नॉट एबल टू पे प्रीमियम, देन वी हैव टू डेबिट द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर क्या क्या नहीं बन रहा है वो? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या नहीं बन रहा है? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लास्टली टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल से पैसा मिलना था कंपनी को एक्स से, प्रीमियम को द्वारा मिलना था इतना पैसा, उसमें से अलॉटमेंट नहीं दिया इतना, फर्स्ट कॉल इतना नहीं दिया, और कितना मिला होगा वो फॉरफीचर में आ जाएगा। ठीक है, सो तो एंट्री कैसा होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में अमाउंट कितना होगा? 1000 इंटू फुल कॉल अप है ना। हाउ मेनी, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स? 10 फेस वैल्यू फुल कॉल अप हुआ, फुल्ली बुला दिए, सो 1000 इंटू 10,000 शेयर कैपिटल। प्रीमियम में कितना आएगा? 1000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2000 प्रीमियम में चले जाएगा। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 1000 इंटू अलॉटमेंट मनी इज इंक्लूडिंग प्रीमियम 6000 इसमें अलॉटमेंट में। देन फर्स्ट कॉल में 1000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी इज 3, सो 3000। क्या करेंगे? माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 9, सो 3000। तो 3000 किस में हो जाएगा? फॉरफीचर में। सो कैसा क्या लिखेंगे हम नरेशन? बीइंग 1000 shares were forfeited for non-payment of allotment, first and final call, including premium. Okay, this is the forfeiture entry. Easy है? Easy था? बहुत easy था। बस इतना एंट्री याद रखिए, फर्स्ट शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, फिर अनपेड कॉल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, देन फॉरफीचर को क्रेडिट करना पड़ेगा। याद रखना बहुत इजी है। व्हेन वी मेंटेन कॉल्स इन अरियर, सो इंस्टेड ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, वी हैव टू राइट कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ओके, सो फॉरफीचर तो लगभग हम लोग जान गए। अभी फॉरफीचर का बात क्या है? री इश्यू। फॉरफीचर के बाद क्या होता है? री इश्यू। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या पढ़े? रामलाल का कार था, रामलाल पेमेंट नहीं कर पाया, सो कार को कंपनी ले लिया, कंपनी जब्त कर दिया। तो कंपनी जब्त क्या करेगा? कार को रखेंगे ऐसी? नहीं, वो कार को थोड़ा ठीक ठाक करके दूसरा किसी को क्या कर देंगे? रीसेल कर देंगे ना। उसी तरह जब कंपनी, व्हेन शेयरहोल्डर्स कुड नॉट एबल टू पे पर्टिकुलर अमाउंट, इज शेयर्स आर फॉरफीटेड। नाउ आफ्टर सम टाइम द फॉरफीटेड शेयर्स में री इश्यू टू समबडी। जो फॉरफीट किए शेयर, वो शेयर्स को हम दूसरा किसी को क्या कर देंगे? री इश्यू कर देंगे। तब क्या एंट्री होगा? री इश्यू क्या है? री इश्यू ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ forfeited shares, reissue of forfeited shares। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आएगा? री इश्यू 3 कंडीशन में कर सकते हैं। एक पार में कर सकते हैं, सेकेंड प्रीमियम में कर सकते हैं, और डिस्काउंट में कर सकते हैं। इश्यू डिस्काउंट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन री इश्यू डिस्काउंट में कर सकते हैं। ए पार प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है? जैसा कि हम लास्ट एग्जांपल क्या पढ़े? मिस्टर एक्स, फेस वैल्यू कितना था एक्स का? शेयर्स का 10 रुपीज था, ठीक है, और री इश्यू हम लोग कितना कर रहे हैं? 10 रुपीज का शेयर्स को दोबारा हम लोग 10 रुपीज में ही बेच रहे हैं, तो मतलब इश्यू एट पार, री इश्यू एट पार। एक्स का शेयर कितना था? ओरिजिनली एट पार था, ओरिजिनली एट पार था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 12 में बिक्री कर रहे हैं, तो प्रीमियम है,
originally issued at par but reissue at premium. ठीक है, नाउ ओरिजिनली इश्यू एट पार था, फिर हम लोग 9 रुपए में बिक्री कर रहे हैं, सो डिस्काउंट. ओरिजिनली इश्यूड एट पार, री इश्यू एट डिस्काउंट. इश्यू में तो डिस्काउंट नहीं होता. सेकेंड उसी तरह सेम इसमें भी री इश्यू पार में हो सकता है और प्रीमियम में हो सकता है. इसको धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज में सीखेंगे. सो व्हाट इज री इश्यू? When the forfeited shares were reissued by the company to some other party, then that is called reissue. The reissue may be done in 3 ways. One, the reissue may be at par. We can reissue at discount. We can reissue at premium. इसमें एक बात है, कितना हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं. रीइश्यू में डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं. इसका जो पहले एग्जांपल क्या देखे थे हम लोग, एक्स, मिस्टर एक्स का फेस वैल्यू कितना था 10, उसको बांधना था एप्लीकेशन में, कितना बांधना था 3 बांधना था. अलॉटमेंट कितना बांधना था 4. फर्स्ट कॉल कितना बांधना था 3. क्या हुआ, एप्लीकेशन पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया. ये एग्जांपल था ना. इसमें कंपनी का कितना बेनिफिट हुआ, कितना अमाउंट फॉरफिट किया कंपनी, कंपनी फॉरफिटेड 3 रुपीज. कंपनी जो एक्स्ट्रा 1 रुपए का शेयर को वापस नहीं किया ना कंपनी, तो कंपनी का बेनिफिट है. सो मैक्सिमम जब रीइश्यू होगा, जो कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, मैक्सिमम 3 रुपीज डिस्काउंट दे सकता है. कितना बेनिफिट हुआ फॉरफिटेड में, उतना ही डिस्काउंट रीइश्यू में दे सकता है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता है. तो कंपनी में गिव मैक्सिमम टू दी फॉरफिटेड अमाउंट, उतना ही अमाउंट कंपनी रीइश्यू में डिस्काउंट दे सकता है. एक केस में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है कंपनी, ओनली अप टू 3 रुपीज. राइट. सो हम लोग धीरे धीरे उसके भी सीखने वाले हैं, हाउ टू रीइश्यू. सो रीइश्यू का एंट्री हम लोग अभी सीखेंगे, फिर देन प्रॉब्लम में जाएंगे. रीइश्यू का एंट्री, शेयर कैपिटल का एंट्री हम लोग सीखेंगे, फॉरफिचर का एंट्री सब जस्ट सीखे थे हम लोग. अभी रीइश्यू का एंट्री सीखने वाले हैं. व्हाट इज रीइश्यू? रीइश्यू ऑफ शेयर्स. फॉरफिटेड जो किए थे शेयर्स, वो शेयर्स को हम लोग दोबारा किसी को रीइश्यू कर रहे हैं. सो कितना कंडीशन था, 3 कंडीशन था. फर्स्ट कंडीशन क्या है, पार. मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपीज था, सो हम लोग अभी 10 रुपीज में ही रीइश्यू कर रहे हैं. तो एंट्री क्या होगा, शेयर इश्यू कर रहे हैं, सो पैसा अंदर आएगा. दोबारा हम लोग शेयर दे रहे हैं ना, तो पैसा अंदर कंपनी का अंदर आएगा. सो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल, मान लीजिए 1000 शेयर्स एक्स का 1000 शेयर फॉरफिट किए थे ना लास्ट प्रॉब्लम में, उसको हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं. 1000 इंटू 10, 10,000 दूसरा किसी को हम लोग इश्यू कर दिए, मान लीजिए मोहन को बिक्री कर दिए. तो बीइंग क्या आएगा, बीइंग 1000 shares were reissued at rupees 10. When shares were reissued at par, the very simple entry, bank account debit to share capital. सिंपल था. मान लीजिए हम जो है रीइश्यू डिस्काउंट में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, डिस्काउंट में कर रहे हैं. तब क्या होगा, बस सेम एंट्री होगा, बस एक एंट्री को ऐड करना पड़ेगा. क्या होगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इज द लॉस, नो लॉस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, इजंट इट. तो डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. लेकिन यहां पर रीइश्यू में डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके स्टूडेंट, आज हम क्या सीखे, व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न फॉरफीचर अकाउंट, हाउ टू पास एंट्री and how to pass reissue. Next class में the entry for reissuing a discount and premium.
So till then, take care. Bye.